روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. کلام مقدس کا بڑا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں روزے کا رزلٹ، روزے کا روزہ رکھنے کا نتیجہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں. ابھی ہمارا مضمون ہے روزے کا نتیجہ یا روزے کا رزلٹ کیا ہے. کلام مقدس میں جب ہم متی 6 باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا اس کی عوض آپ کو کچھ دیتا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر آپ 2 طرح کے روزے ہیں، ایک انسانوں کے لیے، جو انسانوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کو اجر نہیں ملتا. جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ فریسی اور محصول لینے والے کا، فریسی لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا شخص ہے، لیکن محصول لینے والا گنہگار ہے اور وہ خدا کے حضور جھکتا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو روزہ خدا کے لیے رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن سمجھتے ہیں اور پھر خدا ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب بھی روزہ رکھا گیا اس کا نتیجہ ہم ان زندگیوں میں جنہوں نے روزہ رکھا دیکھتے ہیں. مثلا موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا. خدا نے اسے احکام دیے، خدا نے اسے لوحیں دی اور کلام دیا. اب یہ نہ صرف موسیٰ کے لیے باعث برکت بلکہ ساری قوم اسرائیل کے لیے باعث برکت. اب صرف موسیٰ کے روزہ رکھنے سے موسیٰ اور اس کے خاندان کے لیے برکت، کیونکہ کلام کے تابع ہونے سے برکت ہے، اور پوری قوم اسرائیل کے لیے بھی برکت ہے. روزے کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، اس کا خاندان اور تمام اسرائیل کے لیے احکام الہیہ کے باعث برکت. اور اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، ملکہ آسر روزہ رکھتی ہے تو اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم بچ گئے، اور یہودی قوم موت سے بچ کر زندگی پا گئی. خدا نے اس روزے پر نظر کی، کیونکہ یہ روزہ کسی انسان کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ خدا کے لیے رکھا گیا، اور یہی خدا کو پسندیدہ روزہ ہے کہ اس کے لیے رکھا جائے. اور بائبل بیان کرتی ہے
तमाम यहूदी कौम यानी मलका अस्तर और उसकी सहेलियों ने रोज़ा रखा 3 दिन का। उसका नतीजा ये निकला कि यहूदी कौम तमाम यहूदी कौम जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में थी वो सब बच गए। और जब हम मर्दकी का रोज़ा देखते हैं तो मर्दकी के लिए मौत थी और उसने रोज़ा रखा और उसके लोगों ने रोज़ा रखा। तो जिस सलीब पर और जिस सूली पर मर्दकी को लटकाया जाना था उस पर उसका दुश्मन हमान वो उस पर लटका। अब देखिए उसका नतीजा रोज़े का। और इसी तरह जब हम और आगे बढ़ते हैं, नैनवा के लोग उन्होंने खुदा के लिए रोज़ा रखा। और रोज़ा भी ये नहीं कि सिर्फ चंद लोगों ने, बल्कि नैनवा के तमाम लोगों ने, हत्ता के बादशाह ने भी रोज़ा रखा। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि तमाम नैनवा बच गया। अजीजो, जब आप रोज़ा रखते हैं खास तौर पर खुदा के लिए, रियाकाराना रोज़ा नहीं है, दिखावे का रोज़ा नहीं है, इंसानों पर अच्छा तासुर कायम करने के लिए रोज़ा नहीं है, तो वो रोज़ा नतीजा फेज होता है। उस रोज़े का नतीजा निकलता है। और बाइबल ये बयान करती है कि वो जो खुदावंद के लिए रोज़ा रखते हैं, खुदा उस रोज़े के नतीजे में उनको बरकत बख्शता है। और यकीनन खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और कलाम मुक़द्दस में बाइबल ये बयान करती है कि जब हम नए अहदनामे में देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब, और इसी तरह यूना का भी हम देखते हैं, वो 3 दिन रोज़े में उसका नतीजा ये निकला कि मछली के पेट से निकल आया। और जब हम नए अहदनामे में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का कि वो 40 दिन 40 रात रोज़े में रहा और आजमाया गया। और आजमाइशों में आप भी आजमाए गए। कभी आपको थकावट, कभी दर्द, कभी शायद पहलू बदलते, और कभी ये कि बच्चा कहता पानी पीना है, और जब साथ लेकर जाएं तो आपका भी दिल चाहे कि मैं भी पानी पी लूं, या ये कि घर का काम, कई तरह की इन घंटों में हम 8 बजे से अब तकरीबन 5:05 हो गए, तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे और 5 मिनट हो गए। 9 आवर और 5 मिनट्स आप खुदा के हुजूर रहे। और आज़माइशें आई, कभी शैतान ज़हन को आपको भटकाएगा, कलाम ना सुने, लेकिन आपने पताबंदी के साथ कलाम को सुना। कभी ख्याल आया कि थक गई हूँ या थक गया हूँ, चला जाऊँ, लेकिन आपने इस आज़माइश पर पता पाई। कभी ख्याल आया क्या जुमे का दिन कोई मेहमान ना आ जाए, घर कोई भी नहीं, आपने पता पाई। ये ख्याल आया। कई तरह की आपकी भी आज़माइश इन 9 घंटों 5 मिनट में मसलसल आज़माइश होती रही। और ये भी हुआ कि अब बस अब ना एग्जॉस्ट हो गया, अब नहीं गुंजाइश, और 3 बजे और आप गायब। आप कहेंगे भाई अब तो 3 बज गए, पहले भी हम 3 बजे तक ही करते, अब 3:30 हो गए, चलो अब बस चले जाएं। लेकिन आप मुस्तकिल तौर पर रहे। ये है पताबंदी। आज़माइशें आती हैं। और एक बात याद रखें, शैतान जब आप खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं ना, जब खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं। और जब इंसानों के लिए रखते हैं कोई आज़माइश नहीं आई। मैं एक दफ़ा एक जगह गया तो गैर कौम के रोज़े थे, और वो एक शख्स आया, उसकी अजीज़ा कहने लगी रोज़ा, कहने लगा लग नहीं रहा शक्ल से तो लग रहा, कह रहा हाँ रोज़ा। थोड़ी देर के बाद कहता खाना दो, उसने कहा आपका तो रोज़ा, कह रहा वो रोज़ा दिखाने के लिए है ना इंसानों के लिए
میں نے دکھایا کہ روزہ ہے, آپ نے دیکھا روزہ ہے, لیکن میں نے دوپہر کو بھی کھایا اور صبح بھی کھایا. اب یہ کون سا لوگوں پر تاثر دینے کے لیے, اس میں آزمائش شیطان کی طرف سے کچھ نہیں آئے گی, اس لیے اندر سے آپ روزے میں نہیں ہیں. عزیزو, اگر آپ ایسا روزہ رکھتے ہیں جو خدا کے لیے, اب کیا ہے, مثلا آپ سے پوچھا روزہ ہے, آپ نے کہا جی روزہ ہے, آپ ناشتہ کر کے نکلے ہی ابھی, آپ نے کہا ہے, اب اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی کھایا, پھر کوئی اور ملا, اس سے کہا جی روزے, ہاں جی کیا شکر ہے خدا کا روزے رکھ رہے ہیں. اب کیا آپ تاثر دے رہے ہیں لیکن رکھا نہیں, تو شیطان آپ کو آزمائے گا کیا؟ آپ تو شیطان کے اعلیٰ کار ہیں, اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن جب آپ خدا کے لیے روزہ رکھیں گے پھر آپ آزمائے جائیں گے. اور بائبل بیان کرتی کہ یسوع مسیح آزمایا گیا, اور جب آزمایا گیا اور اس نے فتح مندی حاصل کی, تو میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 11ویں آیت. لکھا ہے, تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. اب غور کریں, رزلٹ دیکھیں, خدا کے لیے روزہ رکھیں گے تو آپ کی خدمت فرشتے کریں گے. رزلٹ دیکھیں, مسیح نے فتح پائی, اور جب فتح پائی تو اس کا رزلٹ دیکھیں, آپ فرشتے آ کر خدمت کر رہے ہیں. اور انگریزی میں جانے, انگریزی میں سرو, فرشتے سرو کر رہے ہیں, فرشتے خدمت کر رہے ہیں. اور آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں. جب آپ خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو فرشتے سرو کرتے ہیں, فرشتے آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور سرو کرنا اس معنی میں بھی ہے کہ جو کھانا لاتے کہتے ہیں میں نے سرو پکایا, اس نے سرو میں نے کیا. عزیزو, خدا آپ کو آسمانی خوراک دیتا ہے اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے. اور مکاشفہ میں جہاں بھی لکھا ہے نا کہ فلدلفیا کے فرشتہ کو یہ لکھ, لودیکیا کے فرشتہ کو یہ لکھ, جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہاں فرشتے سے مراد اس کلیسیا کا پاسبان ہے. اور آج خدا نے چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے پاسبانوں کے وسیلہ سے آپ کو ان 9 گھنٹے 10 منٹ تک آپ وہ خدمت کرتے رہے اور آپ بینیفٹ حاصل کرتے رہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہی نہ, اور یہ والا روزہ جو ہے یہ ریاکارانہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا کہ آپ مسلسل یہاں بیٹھے ہی ہیں اور مسلسل یہاں سے گئے نہیں ہیں, کھانا نہیں کھایا, اور صبح 8 سے لے کر اب تک تو یہاں سامنے ہیں. عزیزو, خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ کو سرو کرے, آپ کو آسمانی خوراک مہیا کرے, اور آپ بلیسنگ پائیں, آپ برکت پائیں. عزیزو, روزہ جب خدا کے لیے رکھتے ہیں تو نتیجہ خیز اور فروٹفل ہوتا ہے, پھلدار ہوتا ہے. اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی روزہ رکھا اور ہمیں سکھایا آزمائشیں تو آئیں گی لیکن ہم گھبرانے والے نہیں, اس لیے کہ ہم یسوع کے ساتھ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کبھی اپنی لائف میں 9 گھنٹے 15 منٹ کبھی بھی ایک ہی نشست خدا کے گھر نہیں بیٹھے؟ ذرا اپنا ہاتھ دکھا دیں. جو اپنی زندگی میں کبھی بھی اوپر ہاتھ کرے, اونچا کرے. 9 گھنٹے 14-15 منٹ تک آپ دیکھیں, اس میں سے میرے خیال میں 98% لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں بیٹھے. لیکن خدا نے ایسا فضل کیا کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا نے یہ ممکن کیا کہ آپ
खुदावंद के लिए रोज़ा रखें और एक दिन मुकद्दस किया जाए और आप दुनिया के सारे कामों से बेनियाज होकर खुदावंद के हुजूर उसका कलाम सुनते रहें। बाकी दिनों में बड़ी टेंशन कि अभी इबादत 2:30 पहले से तैयार, ये बैग इकट्ठा कर लिया, उसमें सामान रख लिया कि भाई जैसे ही ये कहेंगे दुआ शुरू करेंगे दुआए रब्बानी और 3 बजे 3 सवा 3 बजे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आज आपको कोई टेंशन नहीं है। कितने लोग हैं जो इस टेंशन में कि जल्दी खत्म हो मैं जाऊं? कोई है? इसलिए कोई है जो चाहता फौरन अभी खत्म हो मैं जाऊं? हाथ दिखाइए। इसी के 9:15 घंटे में खुदा ने आपको तकबीर दी। मूसा, अब देखिए जितना वक्त और बढ़ता जाएगा आपकी ब्लेसिंग भी बढ़ती जाएगी, आपकी कुव्वत भी बढ़ती जाएगी और आपकी बरकत भी बढ़ती जाएगी। अब मूसा 40 दिन 40 रात खुदा के साथ रहने के बाद और रोजा रखने के बाद जब उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था, कोई वीकनेस नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी। और ये रिजल्ट था, ये नतीजा था। बहुत से जो पानी भी पिए बगैर गुजारा नहीं, खाना खाए बगैर गुजारा ही नहीं, लेकिन आज तकरीबन 9 घंटे और 15 मिनट हो चुके ऑलमोस्ट कि वो बैठे हैं और अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसे रोजा जो खुदा के लिए रखते हैं बाइस बरकत और नतीजा खेज, उसका रिजल्ट है ऐदे अतीक हो या ऐदे जदीद आप देखें, उसका रिजल्ट है। और आज जब आपने खुदा के लिए रोजा रखा उसका भी रिजल्ट है। और खुदा के लिए जब रोजा रखते हैं खुदा रिजल्ट दिए बगैर नहीं रहता। और आज अब वक्त है कि आप उसका अजर पाए। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं और कोई आंख खुली ना रहे। और वही अजर पा सकते हैं जो गुनाह से मुबर्रा। अगर आप गुनाह की हालत में थे तो आज अपने पांव पर खड़े हो जाए कि खुदा मैं गुनाह को छोड़ता हूं। और ये रोजा आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। अगर आप खिदमत कुछ सही नहीं कर रहे थे तो आप भी पांव पर खड़े हो जाएं, खुदा आपकी खिदमत को मौसर बना देगा, फ्रूटफुल कर देगा। जो भी आप में कोताहियां और लफ्ज़िश थी, खुदा चाहता ही है कि अपने कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करें। और जब दिलों को चाक करते हैं, बातन से मसीह का के हुजूर आकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर खुदा अपनी बड़ी कुदरत से गैर मामूली काम करता है। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए। और खुदा इस रोजे में आज बड़ी कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो चाहता है आपकी जिंदगी बाबरकत बन जाए। वो चाहता है आपकी जिंदगी में कमियां जाती रहे। और वो चाहता है आप इस दुनिया में फतहमंद जिंदगी बसर करें। और यकीनन आज खुदा आपके लिए एक बड़ा काम करने को है। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटी यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया और मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ। ऐ यीशु, तेरा शुक्र हो, तू मुझसे प्यार करता है। तूने आज मुमकिन किया कि मैं इस इबादत में तेरे हुजूर आकर तुझसे बरकत पाऊं। मैं खुदावंद, मेरा शुक्र हो, मेरे गुनाहों को
गुनाह की दस्तावेज को अपने लहू से धो, हर तरह के गुनाह को मेरी जिंदगी से दूर कर। आइए यीशु तेरा शुक्र हो। आई खुदावंद अपने खून में छुपा ले ताकि इस दुनिया में फतहमंद जिंदगी बसर करो। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक अक़दस ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। क्या खुदा तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरा जलाल, तेरी कुदरत छाई रहे। और मेरा ईमान है कि तूने अपने लहू में छुपा लिया है और तेरा बर हमेशा इन पर चाहता हूँ और तमाम बंधन टूट जाए यीशु के अजीम और जलाली नाम से। अभी खड़े रहिए और जो बैठे हैं ना वो भी खड़े हो जाए। अब हम एक और सेशन में दाखिल होने को है। जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए। असीसो ईसाया 58 बाब और 6 आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू आपकी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने आम जिन से रूपोशी न करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी अरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चटावल होगा। पिछले जुमे को मैंने इस पर मैसेज दिया था और खुदा ने चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में बड़ी हिकमत और दानाई अपने बहुत छोटे बच्चों को भी बख्शी है। जब मैं मैसेज दे रहा था उसी दौरान पास्टर वैलेंटाइन ने इस गीत की शायरी की और एक दफा भी प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट उसने उसी वक्त इस गीत को गाया था। और मैं चाहूँगा कि वो गीत भी गाएं और आप अपने हाथों को बुलंद करके इसी असना में आप खुदा के हुजूर अपनी दरखास्तें रखें। और यही अल्फाज उस गीत में हैं। पिछले जुमे मैंने मैसेज दिया तो मैसेज के दौरान ही उससे शायरी भी की और मैसेज के दौरान ही कंपोजिंग कर दी और मैसेज के दौरान खुदा ने पाक रूह के वसीला से तौफीक दी और उससे डायरेक्ट इस गीत को, वरना आसान नहीं है, शायरी है, फिर उसका बैलेंस करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर साजों के साथ प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर जाकर गाते हैं। लेकिन ऐसा फ्लो रूह के साथ और उसमें था तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चढ़ावल होगा। तब तो पुकारेगा तो खुदा जवाब देगा, तो चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। और इस गीत में यही बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज है और रूह की तारीफ से उसी वक्त शायरी और ये इंस्टेंट शायरी ये रूह के बगैर मुमकिन नहीं। तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत बख्शेगा और उसके बाद फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप अपने दुख और मसाइल को खुदा के सुर रखिए, खुदा हालात को बदलने वाला।